ساتھ فرشتوں کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ نیک جنات کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ اللہ کی طاقت کی حفاظت، اس کے تیل کے ساتھ اللہ کے نام کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ اللہ کے امر کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ قرآن کا نور، اس تیل کے ساتھ قرآن کی برکت، اس تیل کے ساتھ قرآن کی شفا، اس تیل کے ساتھ وحی کی برکت، اس تیل کے ساتھ جبریل کی آمد، اس تیل کے ساتھ کملی والی کی آمد، اس تیل کے ساتھ اللہ کا وجود، اس تیل کے ساتھ اللہ کا نور، اللہ کا بصارت، اللہ کا طاقت، قوت، یہ سارا نظام اس تیل کے اندر موجود ہے۔ میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تھے وہ تیل بہت استعمال کرتے تھے، میرے آقا بہت تیل استعمال کرتے تھے، بہت زیادہ، اور ان کے ماننے والے آل رسول، اصحاب رسول سر میں تیل لگاتے تھے۔ میرے حضور تیل اتنا استعمال کرتے تھے، تیل اتنا لگاتے تھے کہ آپ کے سر مبارک پہ ایک کپڑا ہوتا تھا، پہلے ایک کپڑا ہوتا تھا، وہ تیل سے تر رہتا تھا، اس کے اوپر ٹوپی ہوتی تھی اور میرے حضور کی پگڑی ہوتی تھی، وہ ایک کپڑا ہوتا تھا، اتنا تیل لگاتے تھے، اور ایک چھوٹا سا کپڑا باندھ دیتے تھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان کا تجربہ، وہ دن میں 2 مرتبہ سر پہ تیل لگاتے تھے، حوالہ میرے سامنے موجود ہے۔ کیوں؟ آج کی دنیا میں وقت سے پہلے نظریں ختم، وقت سے پہلے جوانیاں ختم، وقت سے پہلے جھریاں، وقت سے پہلے چہرے کا حسن، چمک، جمال ختم، جب سے ہم نے سر کی دنیا پہ کیمیکل استعمال کرنا شروع کیا ہے، ہماری زندگی، ہماری جوانیاں گل گئی ہیں۔ میں ایک سفر میں تھا تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے، نئے نئے مالدار ہوئے تھے، انہوں نے ایک بوتل نکالی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے میں یہ بوتل اپنے جسم پہ لگا رہا ہوں اور سر پہ لگا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا تو کیمیکل ہیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں جی، فلاں کمپنی، فلاں ملک، فلاں دنیا، فلاں جگہ سے یہ چیز آئی ہے۔ میں نے کہا چھوڑ دے۔ اچھا، میں نے کہا اس کے اندر ایک لنک ہوگا کہ اس کے آفٹر ایفیکٹ، اس کے نقصان دہ اثرات کیا ہیں، آپ ذرا چیک کریں۔ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا لنک تھا، میں نے کہا اس کو نیٹ پہ کھولے، اس نے نیٹ پہ کھولا، وہ تو لنک چھوٹا سا تھا، نیٹ پہ دنیا تو بے شمار تھی، اس میں فائدے 2 لکھے ہوئے تھے، 98% نقصانات ہی نقصان لکھے تھے۔ میں نے کہا اس کے مقابلے میں زیتون کا تیل، ناریل کا تیل، سرسوں کا تیل، اب اس کے اٹھاؤ، نیٹ پہ نکالو، اس کے فائدے کتنے ہیں، نقصان کتنے ہیں، پتہ چلا کوئی نقصان ہے ہی نہیں، فائدے ہی فائدے۔ فطری زندگی سے محروم ہو گئے، فطری دنیا سے محروم ہو گئے، اور میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے کملی والے کی زندگی میں تیل لگانا سر پہ، وہ آپ سرسوں کا تیل لگائیں، وہ زیتون کا تیل لگائیں، وہ ناریل کا تیل لگائیں، وہ بادام روغن لگائیں، وہ دیسی گھی لگائیں، دیسی گھی بھی گائے کا لگایا جاتا ہے، جو چیز لگائیں۔ ناریل کا تیل یہی ہے، فوراً جذب ہو جاتا ہے، نشان نہیں چھوڑتا، بہترین جذب ہو جاتا ہے۔ اور ناریل کے تیل میں کیا کریں، کوئی چھوٹا سا عطر پڑا ہو، اس کے 1-2 قطرے ڈال دیں، تجربہ کر لیں، زبردست خوشبو ہی خوشبو ہے۔ ہاں، ناریل کا تیل لے، اس میں 2-4 عطر کے قطرے ڈال کے ہلا لے، لاجواب بن جائے گا۔ اور اگلی بات، میرے حضور جب بھی تیل لگاتے تھے، بھوؤں پہ تیل لگاتے تھے، اور پہلے دائیں بھاؤں پہ تیل لگاتے تھے جسے ابرو کہتے ہیں، پھر بائیں تلے پہ حضور کیا کرتے تھے، ہتھیلی، بائیں ہتھیلی پہ تیل لیتے تھے، شہادت کی انگلی سے پہلے دائیں بھووں پہ پھر بائیں پہ تیل لگاتے تھے، پہلے، سب سے پہلے، اور پھر آنکھ کے اوپر تیل لگاتے، پہلے دائیں پھر بائیں۔ آج پوری دنیا اور سائنس، چہرے کے حسن و جمال کی سائنس، منیاری کہتے تھے، آج کاسمیٹک کہتے ہیں۔ منیاری لفظ نہیں ہے، لفظ ہے منہاری، عورتیں منہار جاتی تھی اپنی، جسے پہلے منہاری کہتے تھے، منیاری کہتے تھے، اور اس کے بیچنے والوں کو منیار کہتے تھے، ٹھیک، منیار کہتے تھے، آج اس کو کاسمیٹک کہتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اصلی حقیقت اور سچ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک اصلی حسن و جمال ہے، ایک اصلی حسن و جمال ہے، اور ایک میک اپ کا حسن و جمال ہے، اس میں سچ میں اور حقیقت میں فرق ہی نہیں ہوتا۔
ये हजूर की सच्ची सुन्नत है, मेरे आप छोड़ दी है। जब से सर पे तेल लगाना छोड़ा, पांव के तलवों में तेल लगाना छोड़ा, सर पे तेल लगाना, पांव के तलवों और पिंडलियों और टखनों पे तेल लगाना, पता नहीं मुझसे क्या होगा, गलती हुई या खैर हुई। अपनी एक मैं बताता हूं बात। मैंने एक तहकीक की और एक पोस्ट बना के डाल दी कि पांव के तलवे में तेल लगाने के ये फायदे हैं। चंद साल पहले जो दुनिया ने उसको देखा और जो दुनिया ने उसके फायदे बताए, आज भी वो पोस्ट उठाएं, आप उसके फायदे पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। सिर्फ पांव के तलवों को, पिंडलियों को तेल लगाने के फायदे, आप फायदे पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। अबरू पे तेल लगाना। अब सुने, मैंने एक बात आपको बताई थी, नाखून के नीचे शयातीन जिन्नात, काले जिन्नात रहते हैं। और साइंस क्या कहती है, हमारे नाखून के नीचे जो हमारे पेट के कीड़े हैं, इंटेस्टाइन वर्म्स, उसके अंडे होते हैं, और जो खाने में शामिल हो जाएं, कभी बंदा बीमारियों से नहीं निकल सकता। और रूहानियत की साइंस कहती है नाखून के नीचे शैतानी चीजें होती हैं, और रूहानियत की साइंस कहती है भवों के अंदर फरिश्ते होते हैं, भवों के अंदर फरिश्ते होते हैं। और मेरे कमली वाले क्या करते थे तेल लगाते हुए, सुभान अल्लाह, सारे सुभान अल्लाह कहें, कि बाएं हथेली पे तेल रखते थे, पहले अपनी भवों पे लगाते थे, दाएं थोड़ा सा, फिर बाएं, फिर अपनी आंखों पे। और आज की साइंस कहती है पलकों का मसाज करें, आज की साइंस कहती है भवों का मसाज करें तेल से। क्यों? अगर ये करेंगे, ऐनक, नजर, वक्त से पहले बाल सफेद, याददाश्तें, डिप्रेशन, टेंशन, जहनी उलझाव, खिंचाव, तनाव, ये चीजें खत्म हो जाएंगी अगर ये करेंगे कि अगर आप भवों पे तेल लगाएंगे और पलकों में। और मेरे हुजूर ने आज से सदियों, 1400 साल से ज्यादा पहले ये टोटका फरमा दिया था और बता दिया था कि अपनी भवों और पलकों को तेल लगाएं। उसके बाद मेरे हुजूर अपने सर पे तेल लगाते थे और हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, एटमी साइंसदान इस मुल्क के मोहसिन, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन कहें सारे, फरमाने लगे कि एक शख्स मुझे मिला 90-96 साल की उम्र में, ना बीमारी, ना तकलीफ, ना दुख, ना रोग, कुछ भी नहीं, सही सलामत, सेहतमंद, बिल्कुल ठीक। कहा उसकी इस सेहत और सलामती का राज पूछा तो कहा कोई दाना, कोई कतरा ऐसा नहीं मेरे मुंह में जाए। दाना, दाने से मुराद ग़िज़ा, कतरे से मुराद हर मशरूब, लिक्विड चीज, कतरा पानी है, दूध है, शरबत है, कोई दाना और कतरा मेरे अंदर नहीं गया, आज तक नहीं गया कि मैंने बिस्मिल्लाह न पढ़ी हो। बस मेरी सेहत का राज यही है। हर दाने हर कतरे में मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, और हर दाने और हर कतरे में मेरी जो है, मेरी जिंदगी में एक नई जिंदगी आई, मेरी जिंदगी में एक नई रूह आई, और मेरी जिंदगी में एक नई ताजगी आई। ये जिन्नाती शैतानी चीजें टूट रही हैं, ये आपके इर्द गिर्द बुलेट प्रूफ निजाम बन रहा है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। मैं जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, काली दुनिया कट जाती है, काले जिन्नात टूट जाते हैं, शैतानी चीजें जो बीमारी, तकलीफ, परेशानी में हमें नुकसान देना चाहती हैं वो खत्म हो जाती हैं। एक हिफाजत का अनोखा हिसार, एक हिफाजत का अनोखा हिसार, एक हिफाजत का अनोखा हिसार हमारे इर्द गिर्द आ जाता है। एक हिफाजत का अनोखा हिसार हमारे इर्द गिर्द आ जाता है, और हैरत का निजाम यह है कि अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। वो कहने लगा जब मैं ग़िज़ा, कोई कतरा या कोई दाना बिस्मिल्लाह के बगैर आज तक मेरे अंदर नहीं गया। और मेरे हुजूर जब तेल लगाते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। अब सुने जो मैं चीज सुनाने लगा हूं आगे, जो मैं आपको कहता हूं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी हमारे पास आखिर क्यों नहीं है, हमारे जिस्म के इर्द गिर्द हिफाजत का निजाम क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। अब मेरे आका का फरमान सुने, फरमाया हदीस में है जो बगैर बिस्मिल्लाह के तेल लगाएगा 70 काले जिन्नात उसके साथ शरीक हो जाते हैं। 70 काली दुनिया, काली चीजें, काले रोग उसके साथ शरीक हो जाते हैं।
शरीक हो जाते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, जो सुने अब, जो फरमाया जो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े तेल लगाए। अच्छा, हमने ये समझा है कि हमारे ऊपर जादू इंसान करते हैं। देखें, जब मैंने कोई काला बकरा, काला मुर्गा, माल, चीजें नहीं लेने, मैं खत जमा करके बैठा था कि फलाने 7 लाख को दिए, उसको 70,000 दिए, उसको 3 लाख दिए, उसको इतने दिए, उसको इतने दिए। आपको याद है मैंने एक दफा खड़े होकर आपसे पूछा था कि आज तक मुझे किसी का नाम ना बताओ, किसी को, पीर को कितने पैसे दिए। आप में से बेशुमार लोगों ने बताया था इतने लाख, इतने हजार, इतनी चीजें दिए। मैं सोचने लगा कि हमने दिए इतने पैसे, इतना निजाम, लेकिन अगर ये एक छोटे से टोटके पे भी अमल कर ले, अपना नुकसान तो हम खुद करते हैं। हिफाजत का निजाम हम छोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि शायद सारे इंसान जादू करने पे बैठे हैं। नहीं नहीं, हर बंदे का यह काम नहीं है। अगर कोई कहता है ना, तो वो शायद भूल रहा है। हमारे पास जादू करने वाली भी और ताकतें भी हैं। वो शैतानी ताकतें, वो जिन्नाती ताकतें हैं, वो हमारे ऊपर जादू करती हैं। अब मेरे आका ने फरमाया, जो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर तेल लगाता है, 70 काले जिन्नात उसके साथ शरीक हो जाते हैं। 70 काले जिन्नात। अच्छा, काले जिन्नात हमें नजर नहीं आते, नजर आते हैं? ये पिछले साल मरी में वाकया हुआ। बर्फबारी के दौरान गाड़ियां फंसी, गाड़ियों में बैठे बैठे लोग मर गए। और बात क्या आई? सिर्फ एक बात आई जी, ऑक्सीजन खत्म हो गया था, कार्बन ज्यादा हो गया था, बंदे मर गए। ऑक्सीजन देखा है किसी ने कभी? जिसने ऑक्सीजन आज तक आंखों से देखा है वो खड़ा हो जाए, जिसने कार्बन आंखों से देखा वो भी खड़ा हो जाए। ऑक्सीजन नजर नहीं आती, अंग्रेज कहता है, हम कहते हैं। कार्बन नजर नहीं आती, साइंसदान कहते हैं है। मेरे कमली वाले ने फरमाया, बरकत उठ जाती है, रहमत हट जाती है, काली चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। मेरे आका का फरमान सच और हक है, इंशाअल्लाह है, सच है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जो तेल लगाता है बगैर बिस्मिल्लाह के। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने बंदे से पूछा उम्र का राज, कहा कोई कतरा और कोई दाना मेरे अंदर आज तक ऐसा नहीं गया जो बिस्मिल्लाह के बगैर गया हो। आज भी इंशाल्लाह हम फैसला करते हैं, हम भी ये इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। हाँ, छोटा सा अमल है, छोटा सा अमल है, कोई पाबंदियां नहीं है इसके लिए। हम भी इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में इसको जरूर शामिल करेंगे। हम समझते हैं कि हमारे पर जादू कोई दुनिया भी करती है। मेरे पास जिंदगी गुजर गई इसी शोबे से। आज भी तालिब इल्म हूं, कोई पहुंची सरकार नहीं हूं। आज भी तालिब इल्म हूं, कोई पहुंची सरकार नहीं हूं, और तालिब इल्म ही रहूंगा, सीखने वाला। लेकिन ये शैतानी और जिन्नाती जादू इंसानी जादू से कहीं ज्यादा ताकतवर है, याद रखिएगा। कहीं ज्यादा ताकतवर है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, और हद से ज्यादा ताकतवर है। क्या ख्याल है आज के बाद? फिर अब मैं एक तेल बताता हूं, जो तेल का तेल है, टॉनिक का टॉनिक है, इलाज का इलाज है, और जिंदगी की जिंदगी है। एक तेल ले ले, सरसों का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल, कोई भी आप ले ले, जितनी मिकदार में ले ले। घर वाले मिल बैठ के 2, 4, 5, 6 पर हो घर वाले, ये काम ठेके पे नहीं कराना। इतने पैसे ले ले तो कर दे, ना कराना। इसलिए किताबों में आता है, अगर तेरा बाप फौत हो जाए और तू इस काबिल है तो अपने बाप या मां का जनाजा खुद पढ़, खुद पढ़। जो तू दर्द से दुआएं मांगेगा वो कोई और नहीं मांग सकता। क्यों? बाप तेरा मरा है, उसका तो नहीं मरा। जो तू दर्द से दुआएं मांग सकता है और कोई नहीं मांग सकता। मेरी आपसे दरखास्त है, ये खुद पढ़ें। उधर से बंदे बोला, उधर से बंदे बोला, उसने कहा जी मैंने 1.25 लाख करवाया फलां चीज का, मुझे तो समझ नहीं आती। अब रखें सामने तेल, आज मैं बुलेट प्रूफ आपको बता रहा हूं। रखें सामने तेल
और 1001 दफा सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें। ये सूरत कुल या अय्युहल काफिरून का तर्जमा आज जरूर उठा के चेक कीजिएगा, आप अपने मोबाइल पे चेक कर लीजिएगा, अब कल देखिएगा, परसों देखिएगा। सूरतुल काफिरून, अल्लाह पाक ने ना काली चीजें, काले लोगों को चैलेंज किया है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ता, चैलेंज किया है। और जो आखिरी आयत है, आखिरी आयत जो कुल या अय्युहल काफिरीन की है, वो बताऊं क्या है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जा, तेरा दीन अपना है, मेरा दीन अपना है। तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद। तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। ये बड़ी ताकतवर सूरत है, ये बहुत ताकतवर सूरत है। मैं तो सही बात है बाज़ वक़्त हैरान होता हूं। किस बात पे हैरान होता हूं? मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूं। बाज़ वक़्त इल्म की कमी, नावाकफियत की वजह से कहते हैं, इल्म की कमी नावाकफियत की वजह से कहते हैं कि अंग्रेजों पे जादू जिन्नात नहीं होते। मैं फिर कह रहा हूं, अंग्रेज जितना जादू जिन्नात नजर बद इन चीजों को मानते हैं, उसके लिए हमारी नेट पे पढ़ी जादुई लाइब्रेरी में सैकड़ों किताबें अब तक जमा कर चुके हैं, मजीद कर रहे हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जा, तुझे तेरा दीन पसंद है, मुझे मेरा दीन पसंद है। तुझे तेरी अदा पसंद है, मुझे मेरी अदा पसंद है। मुझे कमली वाली की गुलामी पसंद है, मुझे मेरे आका की गुलामी पसंद है। मैं लाख गुनाहगार हो जाऊं पर मेरे दिल में आका की गुलामी, लाख गुनाह